study about the different properties of colloidal solutions, and in that we'll focus on the the property that is the Brownian properties. And this particular property, or the Brownian, basically you can say Brownian movement, that is being shown by the colloidal solutions. And this is basically one of the property which has been kinetic or the mechanical property. Okay, the Brownian movement here, that is because of kinetic or mechanical properties. Now I have made a small diagram. Just focus on this diagram. This is the colloidal solution. You know that the colloidal solution contains two things. One is the dispersion medium and other is the dispersed particles. Dispersed particles are what? The colloidal particles. So what is happening, that this particular Brownian movements, first of all you have to focus that this is being shown by the colloidal solution, and it was first of all discovered by Robert Brown. Okay, and this particular Brownian movements is related to the zigzag movement of the colloidal particle in the dispersion medium. That's why I've made these things: dispersion medium and dispersed phase, the colloidal particle. So these colloidal, this is the, suppose karo, this is your entire dispersion medium, and in this the colloidal particles are there and they are moving in a zigzag motion. Okay, zigzag movement में move कर रहे हैं these colloidal particles present in the dispersion medium in a colloidal solution. This is known as Brownian movements. So that is your main definition, that these particles, colloidal particles, are moving in a zigzag motion और zigzag movement in the dispersion medium, है ना. जैसे हमने बताया ये disperse phase है आपका, जो कि colloidal particles हैं. These are moving in a zigzag movement in the dispersion medium in a colloidal solution, and this entire thing is a colloidal solution. So how is happening? Just see these. This is the, you can say, Brownian movement. This is happening how these colloidal particles are changing their path in the particular dispersion medium, and this is arises because there is an unequal, you can say, bombardment of the molecules, of the moving molecules of dispersion medium on colloidal particles takes place. Now what is the case is happening? Why this is unequal bombardment of moving molecules of the dispersion medium? Actually, you know that this particular thing has two things: your dispersion phase and dispersed phase and dispersion medium. So what is happening, this particular dispersion medium is also moving, है ना. ये भी इनके particles भी move करेंगे, भाई medium है, their particles will also move, and these colloidal particles are also moving. So what is happening, this particular dispersion medium, इनके भी तो molecules होंगे इन dispersion medium में भी, भाई कोई ना कोई medium है, तो they will also contain the molecules. And these dispersion phase जो colloidal particles है, they are also the particles, or they can be a molecules. So what is happening, this particular dispersion medium is moving. ठीक है, their molecules are moving and they are attacking the dispersion particles. So आपका जो भी dispersion medium में जो आपका particle है, तो basically what is happening, this particular dispersion medium is also moving. They are continually attacking on the colloidal particles from all the side. कहीं से भी कर सकते हैं, इधर उधर. इसीलिए देखो unequal bombardment है किसी भी उससे. तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, कोलोइडल पार्टिकल्स अपने उससे मूव कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम इज़ चेंजिंग इट्स पार्ट. सो अब सपोज करो उसने यहाँ से अटैक करा, तो इसका हो सकता है ये पार्टिकल उठ के यहाँ चला गया. अगर उसने यहाँ से अटैक करा होगा तो ये पार्टिकल उठ के यहाँ चला गया. तो एक zigzag मैनर में these particles start moving and the direction is always changing, and this leads to a random zigzag movement of the colloidal particles. You are getting my point? तो these particles, जो colloidal particles होते हैं, ये कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है इनका मूवमेंट, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो किस तरफ से अटैक करेंगे. ठीक है. नाउ द ब्राउनिन मूवमेंट डिक्रीजेज. हाउ दे आर डिक्रीज. देखो इंक्रीज़ कब करेगा ब्राउनिन मूवमेंट और डिक्रीज़ कब करेगा. सारा खेल है कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज़ पर. इफ़ द साइज आर स्मॉल then the Brownian movement is increased, and if the size are more, जैसे अगर colloidal particle का size अगर big है तो Brownian movements क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज़ हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा, अगर ये साइज़ इंक्रीज़ है, किसका साइज़, colloidal particles,
अगर वो बड़ा है या इंक्रीज है तो ब्राउन एंड मूवमेंट्स क्या होंगे आपके, डिक्रीज होगा, ठीक है। दिस थिंग इज देयर। नाउ यू आर स्टडिंग दिस थिंग, वाई वी आर स्टडिंग ब्राउन एंड मूवमेंट। ब्राउन एंड मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ब्राउन एंड मूवमेंट जो है वो एक कोलोइडल सॉल्व को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। अगर ये ब्राउन एंड मूवमेंट पार्टिकल्स क्या हैं, कंटिन्यूटी में मूव कर रहे हैं इसके, ठीक है। अगर सपोज करो ये पार्टिकल्स मूवमेंट रुक जाएँ तो क्या हो जाएगा, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स क्योंकि कंटिन्यूशन में मूव कर रहे हैं ब्राउन एंड मूवमेंट्स के वजह से, और अगर ये नहीं होता ब्राउन एंड मूवमेंट तो क्या हो जाता है, आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब आपको पीपीटी कोलोइडल पार्टिकल्स जो है प्रेसिपिटेट। इसीलिए ब्राउन एंड मूवमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे हो रहा है ब्राउन एंड, व्हाट इज़ ब्राउन एंड मूवमेंट, किसके किन के बीच में लग रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ब्राउन एंड मूवमेंट्स, है ना। वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड व्हेन इट इज़ इंक्रीज, व्हेन इट इज़ डिक्रीज, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। what is happening, what is the use of the brown end movements, though the point is that brown end movement is helping the colloidal solution not to settle down or precipitate it down, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूशन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, है ना। तो ब्राउन एंड मूवमेंट जो बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ है ना प्रेसिपिटेट कैसी होती है, नीचे कैसे बैठेगी। तुम्हें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब जैसे आपने बॉल उछाली तो वो नीचे ही जाके बैठती है, होता है ना। तो क्यों हो रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगता है, इसकी वजह से बॉल क्या है, नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेट नीचे आएगा, इसका मतलब फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो नीचे बैठ रहा है। तो बेसिकली जो ब्राउन एंड मूवमेंट्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल के काम कर रहा है ना। तो ब्राउन एंड मूवमेंट्स ऑलवेज पोजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऑपोजिट ही काम करता है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स हेल्प इन द preventing settling down the colloidal particles. So I think this property is important, these properties are important, you have to focus on it. Reasoning भी आती है plus है ना, detail is also asked. Now next property, this is because of the light, optical properties है इसका नाम, and it is a Tyndall effect and it is one of the important effect. Reasoning इसमें से भी आते हैं, बहुत बोर्ड में reasoning questions पूछे गए हैं. Now this is the diagram which I am showing you from your book. Now this particular effect, first of all you have to focus that this was discovered by the scientist named as Tyndall, and it is a optical property, means it's related to the light, and whatever the things you will see with the help of the microscope. So ultra microscope के through you are seeing everything. In the brown and movement also you are seeing through the microscope only how you can observe how the particles are moving. So for that you need a ultra microscope. Over here also how the light is being scattered is being observed by the ultra microscope. So we are keeping a colloidal solution in a container and it should be kept in the dark place. And because देखो अंधेरा नहीं होगा तो तुम्हें एक रूम रखो, उस रूम में बिल्कुल अंधेरा रखो, वहाँ पे you keep the colloidal solution. And from one side of the container you pass the beam of light. So when you will pass the beam of light, you will see that you will see a bluish a path is being generated because of the bluish, but as you go, the light goes inside it, it becomes decreased, है ना, पतला होता जाएगा, and you will see a bluish light over here. Now this particular phenomena is known as Tyndall effect. दिस पर्टिकुलर रेंज, ये जो रेंज आपको दिख रही है जहाँ पे आप लाइट पास करोगे कोलोइडल पार्टिकल्स पर, ये आपको टुंडल कोन कहते हैं. फिनोमेना इज़ नोन एज टुंडल इफेक्ट, राइट. सो दिस पर्टिकुलर ये जो पूरा पाथ है, जो लाइट जो इम्यूटेड जो एलिमिनेटेड लाइट पाथ जो आपका यहाँ जनरेट होगा यहाँ पर, ये आपका टुंडल कोन कहता है, ठीक है. दिस थिंग इज़ बीन देयर. Now how this Tyndall effect arises? Basically what is happening, you are seeing, you are taking a light from here and you are passing through this particular colloidal solution. This particular effect is arises because of scattering of light, ठीक है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है. अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके वजह से हो रहा है? आपके कंटेनर में कोलोइडल सोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें दो चीज़ें, डिस्पर्स मीडियम है यानी कोलोइडल पार्टिकल्स भी हैं, और आपके पास डिस्पर्जन मीडियम भी है. पिछले इफेक्ट में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर कोलोइडल पार्टिकल्स, राइट. So you have to focus in that this particular thing is happening because of the scattering of light takes place by the colloidal particles, and this leads to the Tyndall effect. Now the point is that about the dimensions.
Now these colloidal particles, when you compare the dimensions, they are comparable to the wavelength of ultraviolet and the visible radiations, and they scatter the radiation gets illuminated. So that is the point. Now Tyndall effect is, you will see they absorb this particular scattered light is much larger than the particles itself. Particle छोटे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो कितने बड़े एरिया में ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोइडल पार्टिकल्स जो बेसिकली होते हैं लुक लाइक अ ब्राइट स्पॉट्स। जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये पार्टिकल्स आपको है ना स्पॉटेड फॉर्म में, ब्राइट स्पॉटेड फॉर्म में आपको दिखते हैं, और इसी को आप जो टुंडल इफेक्ट आप कह देते हैं, ठीक है। सो टुंडल इफेक्ट इज़ बेसिकली is the phenomena of the colloidal solutions, not the true solutions. True solution में आपको टुंडल इफेक्ट नहीं दिखता है, ये सिर्फ आपको colloidal solutions में दिखता है, ठीक है। और you judge it by ultra microscope. So I am showing you one more diagram. This is again an example of your book only. These are 3 phases, and this is the NaCl part. This is true solution, you know. This is again a colloidal solution, this is again a colloidal solution. So when a light was passed through it, तो जो true solution था, क्योंकि true solution के particles बहुत small होते हैं, है ना, so that's why they were not showing the Tyndall effect, but the gold salt and the tobacco smoke, they were the examples of the colloidal solution. So they were showing the scattering of lights was there, and this shows to Tyndall effect. Actually one thing you have to focus that why this Tyndall effect is arises, the part जो colloidal solution आप यूज़ कर रहे हो उनके जो particles होते हैं वो heterogeneous होते हैं, and the size is also big, but जो true solution होते हैं उनके solutions are homogeneous and their particles are very small, so they are unable to scatter the light. But these particular colloidal solutions, both are the colloidal solution. I have in this book they are showing these colloidal solution. You can use any of the colloidal solution, या NaCl या KCl ले सकते थे, कोई भी आप आयनिक कंपाउंड ले सकते थे, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल शो करते हैं, बट एवरीथिंग यू कैन नॉट सी। ये सब हम बातें कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप अगर ऐसे नॉर्मल आप सोचो दूध में आप अंधेरा करके लाइट पास कर दो तो आप सोचो कि आपको ये टुंडल इफेक्ट दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा। फॉर दैट यू नीड अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स, राइट। Now we will study about electrical properties of the colloidal solution. The first point we will discuss in this, presence of electrical charge on the colloidal particles and stability of the solid or the colloidal solution. Now it is one of the very important point because reasoning takes place from this portion a lot of reasonings will ask from you indirect, और वो reasoning books में दिए भी नहीं रहते, that's why the concept should be clear to you. Now you know this is the colloidal solution. I have made a small diagram, and this colloidal solution contains 2 parts. One is the colloidal particle, that is also known as your now you are familiar with the word dispersed phase, and you have the dispersion medium, the medium in which these colloidal particles are suspended. Now this particular it is one of the very important colloidal property, or which is the electrical property, because from this 2-3 questions are asked. ये तीनों दोनों questions हमने लिखे हैं, we'll discuss later on. First focus on it. Now this says that there is a electrical charge present on the colloidal particles and it provides a stability. The point is that you have to keep it in mind, जितने भी colloidal particles होते हैं, एक particular colloidal solution possess colloidal particles, they possess a definite electrical charge. ये particles हैं, इन पे एक electrical charge होता है, और dispersed medium होता है, इस पे भी electrical charge होता है। और ये दोनों जो particles जो हैं, जैसे colloidal particles, dispersion mediums के particles, इन पे जो charges present होता है वो एक दूसरे से opposite होता है. Suppose if it is positive, this is negative. Are you getting my point? The charges that they carry on them are entirely opposite to each other. Equal and opposite means अगर इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 10 नेगेटिव चार्ज होगा. तो पहली चीज़ है कि the charges that are both will carry the charges will be there, and they carries the opposite charge but equal opposite charges. जितने भी colloidal particles होंगे, first of all you have to keep it in mind, all the colloidal particles will have the same charge and equal charge. यहाँ colloidal particles की बात हो रही है. They will carry, all the particles carry same type of charges, and dispersed mediums will have the charge but it will be opposite of that of the colloidal charges. You're getting my point? So but equal in numbers. So if they are having a positive charge, all the particles possess positive charge in colloidal particles. The dispersion mediums will have the
नेगेटिव चार्ज बट इक्वल इन नंबर। जैसे अभी मैंने बताया ना 100 पार्टिकल अगर कोलोइडल पार्टिकल्स के हैं और उन पे 100 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर है तो डिस्पर्स मीडियम में भी 100 क्या होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। सो दिस प्रोवाइड्स अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू द सोल्यूशन। तो कोलोइडल पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हो जाएगा, उसमें न्यूट्रल हो जाएगा वो, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उसके पास सपोज करो 100 पॉजिटिव थे उतने 100 नेगेटिव हैं। ये सपोज करो कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कोलोइडल सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन इट, ठीक है, ना ही उस पर पॉजिटिव होगा और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि भाई दे आर हैविंग अ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन देम। तो बेसिकली क्या है, जो कोलोइडल सोल्यूशन क्या है वो आपका न्यूट्रल होता है, नो कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन आंसर समझ लो। व्हाट हैपन, दीज कोलोइडल पार्टिकल्स पोजेस सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, है ना। कोलोइडल पार्टिकल्स के पास क्या है, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हैं। तो व्हाट हैपन, दीज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। भाई इनका क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं इनमें क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स अगर ये हैं तो सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस होते हैं इसके पास, ठीक है, चार्जेस। अब व्हाट हैपन, दीज पार्टिकल्स रिपेल, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव है इस पे भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल वन अंदर, एक दूसरे रिपेल करेंगे, कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे। भाई अगर सपोज करो एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। बट दे आर हैविंग, वन इज़ हैविंग पॉजिटिव, अदर इज़ ऑल्सो हैविंग द पॉजिटिव, तो दीज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर एंड दस रिपेलिंग की वजह से कॉम्बिनेशन नहीं होता है एंड दे विल नेवर लीड टू फॉर्म यू अ लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कंबाइन नहीं करेंगे और ना ही ये लार्ज पार्टिकल्स बनाएंगे, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं, प्लस दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो पीछे समझ लिया, इस वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स दे आर स्टेबल इन नेचर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। So that's why they are not combining and they are not forming the large particles. They are stable in nature and they never lead for precipitation. तो ये पार्टिकल प्रेसिपिटेशन नहीं होते, एक तो ब्राउनिंग मूवमेंट्स के थ्रू भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, प्लस इसकी वजह से भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। तो आप ये दो क्वेश्चन आप देखिए, बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यही चीज़ है, बाय कोलोइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल, आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। एक और चीज़ भी आप लिख सकते हैं, बाय कोलोइडल सॉल्यूशंस आर नॉट प्रेसिपिटेटेड, देन ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस मैनर ओनली। जितना मैंने समझाया है वो पूरा आप लिख लीजिएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, दीज कोलोइडल सॉल्यूशंस आर टू टाइप, पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होता है। यू हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड सोल इज देयर। देयर आर टू टाइप्स on the nature of the charges present. तो इसमें अलग अलग examples हैं, I'll show you, then you can understand. See the positive charge salts, I have shown you from your book only. These are negative charge salts. Now we'll focus on the origin of charge on colloidal particles. So there are different views, we'll discuss one by one. Now the first case is, you will see, due to dissociation of the absorbed molecular electrolyte. Now what happened, this is the colloidal, suppose for a colloidal solution consists of colloidal particles. Now these colloidal particles have the tendency to go for adsorption. Their surface, the colloidal particles surface acts as a surface for the adsorption process. And suppose this is the colloidal particles, so what happened, they adsorb either the reactant molecules or the product molecules. So this particular thing happens that the surface of the colloidal particles, when they adsorb reactant or the product molecules, they go for either for dissociation or ionization. Anything can be happened and this leads to impart charge. तो क्या हुआ, colloidal particle आपका था, उसने क्या करा, एड्जॉर्प्शन की फिनोमेना करी, उसको ने अपना सरफेस दिया, उस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन की फिनोमेना होने लगी। अब क्या वो एड्जॉर्ब करेगा, या तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स,
ये पर्टिकुलर जब एड्जॉर्प्शन होगा उसके बाद क्या होगा, या तो डिसोसिएशन पे प्रोसेस जाएगी या आयनाइजेशन पे। तो दोनों ही कंडीशन पे जब वो ब्रेक होती हैं चीज़ें तो आपको आयंस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सल्फाइड का सॉल लिया, जैसे आपके केस में आपने ना आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल आपने यूज़ करा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स थे इस पर, ये सपोज करो जो भी इसका कोलोइडल पार्टिकल होगा उस पर क्या हुआ, जो H2S के मॉलिक्यूल्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए। ये क्या है, H2S के मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर बीन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो अब क्या हुआ, ये या तो एसोसिएशन में जाएगा, डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि H2S का केस है तो ये आयनाइजेशन पे जाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन पे जाएगा और ये आपको क्या दे देगा, H+ आयन्स दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही आयनाइजेशन, क्योंकि वही वाली बात नहीं, आयनाइजेशन पे जाएगा तो ये आपको H आयन्स दे देता है और सल्फाइड आयन्स दे देता है। तो H आयन जो है वो मीडियम में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन होगा वो कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ, ये जो कोलोइडल पार्टिकल है आपके, इसी के सरफेस पे पहले ये एड्जॉर्ब हुआ H2S मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, इसने सेकंड स्टेप क्या करा, आयनाइजेशन पे चला गया, क्योंकि ये H2S है तो ये आयनाइजेशन पे जाएगा, डिसोसिएशन पे नहीं जाएगा, आयनाइजेशन जाएगा। आयनाइजेशन जाएगा तो भाई ये 2 आयन्स देंगे। अब इसमें जो H आयन्स थे, H+ आयन, ये तो आपका उसमें चला जाएगा जो आपका डिस्पर्जन मीडियम में था, और ये जो सल्फाइड आयन है ये इसके सरफेस पे ही स्टिक हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। दिस वे द कोलोइडल पार्टिकल्स पे अब जब नेगेटिव चार्ज, जब अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, जब फाइनली सब कुछ हो गया, आयनाइजेशन हो गया और सब एड्जॉर्प्शन हो गया, तो इस पर क्या हो जाएगा, सिर्फ सल्फाइड आयन्स के नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो ऐसे लगाओ, ठीक है, वो इस पर दिखेंगे। तो अब ये पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा। अगर पॉजिटिव रह जाता तो ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वे दे गेट्स द नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्जेस. Now the next point is due to the dissociation of the molecules forming the colloidal aggregates. Now you have seen in the soap when the micelles were formed. तो आपने मिसल्स का कंडीशन देखी थी कि RCO और Na सोप होता था, जो कि आपको RCO नेगेटिव आयंस प्लस Na आयंस, इसमें पता था ये लायोफिलिक होता था, ये लायोफोबिक होता था। तो ये इस तरह से अपना बना लेते, जितने भी R होते थे वो सब एक साथ मिलके एग्रीगेटेड हो जाते थे, है ना, और साथ एक साथ जुड़ जाते थे, है ना। और यहाँ पे जो नेगेटिव पोर्शन जो होता था CO- वो रहता था, और यहाँ सब आर्स मैं सारा नहीं बना रही हूँ, बट यू आर रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स। आर वॉज देयर बिकॉज इट वॉज लायोफोबिक, दिस इज़ लायोफिलिक। और इसी पे जो नेगेटिव पोर्शन था, इसी पे यहाँ पे क्या हो जाता था, Na जो होता था वो अटैच्ड हो जाता था, है ना। Na पॉजिटिव आपने बनाया रखा है, दिस थिंग वॉज हैपनिंग, है ना, पॉजिटिव वाला इट वॉज अटैच्ड। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कोलोइडल हैं, ये कोलोइडल डायमेंशंस जो है ये कंबाइंड होके दे आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्मिंग अ बिगर पार्टिकल्स, ठीक है। तो एग्रीगेट्स हो जाते हैं। अब ये पहला स्टेप हुआ कि पहला स्टेप ये जो हुआ बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये आपका एग्रीगेट्स दिखा रहा है ना, कि सब जुड़ के मिल के बड़ा बना ले। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, एग्रीगेट्स के बाद ये अब फर्दर एग्रीगेशन के बाद आइदर दे गो फॉर डिसोसिएशन और दे गो फॉर आयनाइजेशन। ये दोनों फिनोमेना ये जा सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा कि जब ये आयनाइजेशन पे जाएगा तो ये आपको या तो नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज दे देता है। जैसे कि यही वाली कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई कि ये जो सोप था ये आपको टूट के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। तो डिपेंड करेगा, जैसे ये आपने एग्जाम्पल अर्लियर देखा रखा है। तो ये दिस पर्टिकुलर सोप मॉलिक्यूल जो है वो आपका डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होकर उसने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपको दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट now the next theory is due to preferential adsorption of ions that being from solutions. So what happened that these colloidal particles they have a tendency to absorb the particular types of ions, है ना, from the solution. This we have seen earlier. तो colloidal particles क्या करता है, जैसा भी आयन एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पर्टिकुलर आयन क्या हो जाएगा, वो जैसे सपोज करो ये colloidal particle है, तो इसने क्या करा, कोई पर्टिकुलर आयन को एब्जॉर्ब कर लिया अपने ऊपर, ठीक है। एड्जॉर्प्शन ही का चीज़ चल रहा है तो एड्जॉर्ब कर लिया पर्टिकुलर आयन। तो दोज आयन्स विच आर इन एक्सेस इट्स कॉमन दे आर प्रेजेंट इन द लैटिस। तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स पे भी लैटिस साइड है, यहाँ पे कोई आयन्स इसने अटैच कर लिया है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन इज बीन देयर एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन जो करेगा उसी तरह का चार्ज वो एक्वायर कर लेगा। अगर उसने पॉजिटिव
यहाँ पे चार्ज आयंस एब्जॉर्ब करे रखे हैं तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव करा रखा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई का पार्टिकल है, ठीक है, हमने कोलोइडल पार्टिकल यूज़ करा, अगर उसने Fe आयंस को एब्जॉर्ब करा, जो कॉमन आयन उसके लैटिस पे जैसे यहाँ पॉजिटिव अटैच कर लिया है, तो बेसिकली वो आपका जो कोलोइडल सोल्यूशन होगा वो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन किसका हो गया, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन Fe+3 का हो गया है। ठीक है, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं आप कौन सा एक्वायर कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे। अब सपोज़ करो यही आपका कोई कोलोइडल पार्टिकल है, उसने नेगेटिव आयन को एड्जॉर्ब करा, तो उसने जो आपका जो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन किसका हो जाएगा, वो नेगेटिव आयंस का हो जाएगा। नेगेटिव आयंस कौन से, Cl आयंस। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या एक्वायर करेंगे, ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, ये चीज़ होती है। ठीक है, थ्योरी। Now in this video we have discussed about the Brownian moments, Tyndall effects we have studied about the electrical properties और detailing में है, but these are the few points which we have discussed and these are very important points क्योंकि इसमें maximum reasonings are asked, this portion which we are starting. So I hope that you will understand these things and you will go through it with the particular questions also, right?